Friends, let's start with today magnetism and matter, right? So before to that, let's know some basic things about a magnet, right? That means you previously are having the ideas of magnetic field and also magnetic dipole moment. Let's say it's a bar magnet, right? It's a bar magnet. It's the north pole, it's the south pole, correct? Students, actually, one thing is there, the total length of the magnet is known as geometric length. Is known as what? Geometric length, right? This is known as geometric length. But actually, if I'll say about the magnetic length, the magnetic lines of force are always directed from south to north internally and externally from north to south. Yes or no? They come out of north and enter at south, right? But actually, what happens, the magnetic field lines exactly don't bend from the corner, right? They bend little bit away, because once they got to know that the magnetic field is going to change the medium, they can, before to reach, they just do like that. Are you getting my point? That means what happens, exactly before the corner they start bending from this point. So actually the strength of the magnet is little bit not exactly at the corners, a bit away from that, right? So that length, the length that is where the magnetic field is maximum, that is not equal to the geometric length. That is known as what? Magnetic length. That is known as what? Magnetic length. And approximately this magnetic length, let I'm saying L, magnetic, is less than geometric length, that is equal to approximately 5/6 term L geometric, right? Understood? And like students, there was an electric field, right, for which the charge was responsible, right? Let us say Q charge plus Q electric field, right? No single charge monopole charge, single charge is there, but after the progress of the syllabus charge, we just took dipole, right? Do you remember? This is plus Q, this is minus Q, right? They are separated by a distance 2a, and I used to say that is P is equal to either charge into 2a. This P is known as electric dipole. Electric dipole. Like this, we thought of saying the magnet also, right? Like this, we thought of saying about the magnet also. That means, see here, if this is the bar magnet, right? This is north pole and this is south pole. The ability of the magnet to attract the ferromagnetic substance, right? That is known as pole strength. What is the strength of the pole? So like that, we can say it is plus M, we can say it is minus M, right? This small m is known as what? Pole strength. This is known as what? Pole strength. This small m is known as pole strength. One positive charge, one negative charge, separated by a distance 2a, right? One plus m, one minus m. Let's separated by a distance 2l, correct? Let's separated by a distance 2l. Are you getting? So that means here you see. So if I will take here, we took electric dipole moment. Like that, we can also take here magnetic dipole moment. Just say here, we can take here magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment, that is capital M, right? This is a vector, magnetic dipole moment, that is equal to either pole strength M into separator between them 2L. And in earlier, you know, this magnetic pole strength, this pole strength has a unit ampere meter, right? How much current is flowing and what is the length of the conductor. Like that, you take mu naught and I. Yes, sir. Number of turns and how much current is flowing, and number of turns means length. So pole strength unit is ampere meter, but again the unit is multiplied with 2L. Again the unit is multiplied with 2L. So the magnetic dipole moment is a vector and its unit is going to be ampere into meter square. Is that clear? And also remember one thing, right? Like that, you are taking electric dipole and you just remember, always electric field is directed away from positive charge and towards negative charge. Do you remember? Once again, with this chapter also, you'll be revising the other chapter. See, let this is plus Q and this is one plus Q charge and this is one minus Q charge, right? Do you remember electric field that's directed from positive to negative? Electric field lines come out of positive and enter at negative, right? In the same manner, if I'll be taking a dipole, right? And you know the dipole, electric dipole P, just you see, the electric dipole P is always directed negative to positive. Yes or no?
In the same way, you can say if this is north pole, this is south pole, and we're assuming plus m pole strength minus m pole strength, right? And magnetic field lines, like here electric field lines are directed from positive to negative. Magnetic dipole are directed from north to south, externally, not to south, externally, but internally it is south to north. And always remember the magnetic dipole moment m, the direction of always m is minus m to plus m. That means south pole to north pole, south pole to north pole. Is that clear? South pole to north pole. That means if I'll be placing a bar magnet over here, and this is north and this is south, I'll be asking what is the direction of magnetic dipole moment. They'll be taking in this direction, correct? If I'll be placing a magnet like this, and this is the bar magnet north and this is south, then we'll be placing the magnetic dipole moment in this direction, right? And in the same way, let I'll be two similar magnets I'm placing, right? Let there is a magnet here, same bar magnet, another bar magnet is here, right? And this is north, this is south, and I took this is south, this is north. Dipole moment is m, dipole moment is m. So what is the net dipole moment? How to calculate? So dipole moment is always directed from south to north, and this diamagnetic dipole moment is always directed from south to north. So this is 1m, this is 1m. They are perpendicular to each other. Parallelogram law of vector addition. You can apply this one. So this is going to be how much? S square plus b square plus 2ab cos theta, and cos 90 is 0. So that's why I can write here. So magnetic dipole moment m net is going to be how much? M square plus m square root over m square plus m square root over, that is equal to root 2 times of m. This is the net magnetic dipole moment. Correct? Here also in the same way, if they are inclined at some angle, take here see some space is there. So let this is one magnet, this is north, this is south. No, take this one as south, this one as net, same. And another magnet placed like this here. This is also south, this is also north. Same magnetic moment, right? Let the angle between them is 30 degree. So here the magnetic dipole moment is directed in this direction, m. Here the magnetic dipole moment is directed in this direction, m. Angle between them is 30 degree. So you can find m net. M net is equal to how much? M square plus 2m square cos 30 degree, right? Root under, correct? This is the root under. So if I will take cos 30 degree, then you can see how much? Cos 30 is how much? 1 by 2. Sorry, root 3 by 2. M square plus 2m square into cos 30 is root 3 by 2. 2 cancel. So root 3m square plus 2m square. See here, this is 2m square and this is root 3m square. Okay, root over, right? Taking m out, you can say that is root. This is 2 plus root 3. This is the net magnetic dipole moment. In the same way, you can calculate, right? You got an idea about magnetic dipole moment. You got an idea about pole strength. You got a similarity between magnetic dipole and electric dipole. You got how to calculate the net magnetic moment when two bar magnets are placed. That is the theme of the content, right? Just note it down. Student, let's see. If this is a bar magnet, right? Here, see, this is a bar magnet, correct? And if this is south, this is north, right? I'm saying the magnetic length is 2L. We are taking the magnetic length, right? But if I will do it like this, right? And the radius is R. So that means if I'll ask about, like, this is north pole and this is south pole, I asked you what is the geometric length? L geometric, I asked you what is that? Pi R, correct? Yes or no? If I'll ask you what is the magnetic length, L magnetic, then what you will do? 2R. Understood or not, students? Then let's know the concept of coating of magnets, right? Coating of magnet. Let's coat the magnet horizontally and vertically, right? Let's coat the magnet horizontally and vertically. I've taken a magnet whose magnetic dipole, this is north pole, this is south pole, separated by a distance to 2L, and the magnetic moment is M. That means M is equal to either pole strength into 2L. Is that clear? What I did, I just cut it vertically. So that means it will, no monopole doesn't exist. That means if I अगर मैंने उसको कट किया तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ और ये साउथ था ये नॉर्थ पोल हो गया. अभी जो लेंथ था वो कितना हो गया? इसका पोल स्ट्रेंथ जो प्लस m था माइनस m था वो तो रहा ना, ये प्लस m रहा ये माइनस m हो गया.
ये प्लस एम हो गया, ये माइनस एम हुआ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ, बट ये एल और एल में डिवाइड हो गया, राइट। तो ये जो छोटा सा पीस हुआ, इस छोटे पीस का मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश मान के चलो, व्हाट इज दैट, एम डैश, राइट। सो एम डैश इज गोइंग टू बी हाउ मच, ईदर पोल स्ट्रेंथ इनटू एल, separation between them, and I want to know exactly how much of the initial, so that's why what you have to do, सर एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं और एक 2 डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इज m by 2। सो जो छोटा सा पीस हुआ इक्वल हाफ में कट करने के बाद जो छोटा सा पीस हुआ उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m by 2 हो गया, राइट। लेट्स लेट सो अगर मैंने इसको यहाँ मैंने वर्टिकली कट किया, लेट मैंने इसी सेम मैग्नेट को मैंने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, ये नॉर्थ था ये साउथ था, इसका प्लस एम था इसका माइनस एम था पोल स्ट्रेंथ, और बीच में मैग्नेटिक लेंथ 12 था, राइट। मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली कट किया। जब हॉरिजॉन्टली कट किया तो ये दो हिस्से में बट गया, राइट, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो अभी जैसे मटेरियल अलग हो गया तो ये भी नॉर्थ रहा ये भी साउथ रहा, ये भी नॉर्थ रहा ये भी साउथ रहा, दिस इज आल्सो नॉर्थ दिस इज आल्सो साउथ, राइट। ये भी नॉर्थ रहा ये भी साउथ रहा, अगर दोनों में ये नॉर्थ और ये साउथ रहा, राइट, तो इस पे मटेरियल आधा हो गया है, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाएगा, प्लस एम बाई 2, इसका भी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम बाई 2 हो जाएगा, राइट। अगर दोनों का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम बाई 2 हो गया और इसका भी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम बाई 2 हो गया, इसका भी पोल सॉरी माइनस एम बाई 2 हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम बाई 2 हो गया, बट जो लेंथ था वो तो 12 रहा ना, तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इक्वल हाफ का, तो m डैश इज इक्वल टू हाउ मच, आइदर पोल स्ट्रेंथ दैट इज m by 2 into 12, और m into 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी। तो इसका ये मतलब कीप इन माइंड कि अगर मैं एक मैग्नेट को इक्वल हाफ में डिवाइड करूं, वो वर्टिकली हो सकता है या हॉरिजॉन्टली में कट कर दूं, तो उसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो m by 2 हो जाएगा, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस लाइन इज विजिबल, ओके। तो सी हियर, अभी हमने क्या किया कि हमने एक मैग्नेट लिए, राइट, लेट दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, करेक्ट। और इसका आपको अभी तक तो ये पता चल गया सर ये माइनस एम है ये प्लस एम है उसका पोल स्ट्रेंथ, और बीच में सेपरेशन 2l है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू इधर पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, दैट यू नो ऑलरेडी, 2 into l, 2 times of l। अभी मैंने क्या किया, इसको एक आर्क की फॉर्म में बना दिया, आई जस्ट मेड इट इनटू ए फॉर्म ऑफ आर्क। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था और मैंने इसको क्या किया, एक आर्क की फॉर्म में बदल दिया। आर यू गेटिंग? जब आर्क बनाया तो सेंटर में भी वो एक एंगल बनाया होगा ना, इट वुड हैव मेक एंगल इन द सेंटर, राइट। इफ दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, करेक्ट, और जो मैंने बनाया वो आर्क है थीटा, अंडरस्टूड। तो अभी मैंने पूछा कि इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन समझ पे आ रहा है? मैंने एक मैग्नेट था उसको मैंने कर्व करवा दिया, एग्जैक्टली मैंने सेमी सर्कल नहीं किया, 1/4 पे सर्कल नहीं किया, वो करता तो बात अलग होता, बट मैंने उसको कुछ आर्क बना दिया। तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि अगर ये आर्क बनेगा तो उसी हिसाब से m की टर्म्स पे m और मैंने कितना थीटा बनाया यहाँ पर, इन दोनों की हेल्प लेके अभी हम क्या निकालने वाले हैं, इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले हैं, राइट। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अभी इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने हमें ये बताया गया कि हम कौन सा लेंथ लेंगे, इफेक्टिव लेंथ लेंगे, ऐसा नहीं कि थीटा इज इक्वल टू l by r कर देंगे, राइट। तो अभी अगर मैं थोड़ा डायग्राम को एनलार्ज करके बनाता हूँ जस्ट टू सी, हमने ऐसे बनाए वो मैग्नेट को, राइट, और यहाँ पर ऐसे पहले ले लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट, और मैग्नेट ऐसा है, राइट, तो मैग्नेट इज लाइक दिस, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ। स्टूडेंट्स ये जो इफेक्टिव लेंथ मैंने लिया था, मैंने क्या लिया था, 2l लिया था, राइट, हमने क्या लिए थे, 2l। इफ दिस इज 2l, अभी अभी भी वो 2l है, but will not take that distance ना, will take this distance, as I told you earlier, effective length means this distance, initial point और starting point। और आप क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, राइट, ये 90 डिग्री है और ये तो इक्वल होगा, दिस इज y, लेट दिस इज y, हमने ऐसा ले लिया y एंड y। तो ये जो नया मैग्नेटिक, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में तो कोई बदलाव नहीं आया है, प्लस एम माइनस एम, सॉरी प्लस एम, ये साउथ है इसीलिए माइनस एम। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, m डैश इज इक्वल टू हाउ मच, इधर पोल स्ट्रेंथ इनटू इस बार 2y हो जाएगा, बट क्वेश्चन पे तो y नहीं दिया जाएगा, व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, भाई थीटा दिया जाएगा क्वेश्चन पे, और हम हमारे
तो आसान होने के लिए यहाँ पर रेडियस को r ले लेते हैं। एंड यू नो जब आर्क लेंथ होता है तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आर, तो ये जो आर्क लेंथ है theta is equal to how much? L by R, right? Theta is equal to L by R. Understood? If this is theta and this is L and this is arc, right? तो हम यहाँ पर थीटा कितना है भाई, मुझे y निकाल, we want to replace this 2L. So अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो टोटल थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? L मतलब 2L by R. तो यहाँ से R कितना मिल गया मुझे सर? R इज इक्वल टू 2L by थीटा. गुड, राइट? R इज इक्वल टू कितना हो गया? 2L by थीटा हो गया. अंडरस्टूड दिस पार्ट? नेक्स्ट चलते हैं। मुझे इस y को रिप्लेस करना है बेटा। अगर ये टोटल थीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2. अगर मैं साइन थीटा बाय 2 निकालूं, राइट, साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h ना, तो p कितना हो गया? y, h कितना हो गया? r, सो दैट इज y बाय r, राइट? कितना हो गया ये? साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r हो गया। तो मुझे y निकालना है, तो y इज इक्वल टू हाउ मच? r साइन थीटा बाय 2. हमने लिख दिया r साइन थीटा बाय 2। अब ये y पे हम रिप्लेस करने वाले हैं, राइट? और r की जगह पे क्या डाल सकते हैं सर? r की जगह पे 12 बाय थीटा डालिए ना, साइन थीटा बाय 2, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें r नहीं दिया जाएगा ना। अभी अंडरस्टूड y की वैल्यू हमने, तो हम अभी ये y में रिप्लेस करने वाले हैं। तो m इंटू m लिख दिए, 2 की जगह पे 2 लिख दिए। अभी y की जगह में ये लिखने वाले हैं 2l बाय थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। इज दैट क्लियर? और पहले से हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट m लिए थे, दैट इज नथिंग इधर पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, यहाँ पर जो लिए थे हमने, राइट? ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट था। तो अभी यहाँ पर एक m देखो आप है और एक 12 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ m इंटू साइन थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय थीटा, सो दैट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अंडरस्टूड द फॉर्मूला? अंडरस्टूड द फॉर्मूला और नॉट? तो अगर ये फॉर्मूला है, मैं दो चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जस्ट जस्ट सी हियर, कि अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट था m और मैंने इसको हाफ सर्कल बना दिया। कितना बना दिया? हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल बना दिया मतलब थीटा कितना हो गया सर? पाई। तो इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो एम डैश इज इक्वल टू क्या कर रहा है फॉर्मूला? 2 इंटू एम, 2 इंटू एम हमने लिख दिया साइन थीटा मतलब क्या है? पाई, पाई बाय 2 मतलब क्या है? साइन पाई बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय पाई, तो साइन 90 इज 1, तो कितना हो जाएगा न्यू मैग्नेटिक मोमेंट? 2m बाय पाई। अंडरस्टूड, राइट? इस तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पर, कि उसी मैग्नेट को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया कुछ कर्व, आई जस्ट मेड लाइक दिस, तो ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। सेम मैग्नेट जो m था उसको मैंने ऐसे कर दिया। तो जब मैंने ऐसे किया तो हमने थीटा क्या लिया अंदर पे भाई? आर का थीटा कितना ले लिया? पाई बाय 2 ले लिए। तो अभी जो m डैश बनेगा क्या बनेगा सर? फॉर्मूला ये कहता है 2m साइन, अभी थीटा 90, 90 का आधा मतलब पाई बाय 4 हो जाएगा, राइट? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? पाई बाय 2, 90, राइट? तो पाई बाय 4 इज हाउ मच? पाई बाय 4 कितना है बेटा? 2 इंटू एम इंटू साइन पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2, राइट? डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। तो ये कितना कैंसिल हो गया? तो रूट 2 इसके साथ कैंसिल होकर रूट 2 रहा और ये 2 ऊपर चला गया, तो रूट 2 एम डिवाइडेड बाय पाई। अंडरस्टूड? अगर मैं इसको कोई भी आर्क बनाऊं, सेमी सर्कल बनाऊं या 1/4 ऑफ ए सर्कल बनाऊं, जो भी फॉर्मेट पे बनाऊं, अगर थीटा आपको पता चल गया तो आप नया मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, राइट? अंडरस्टूड दैट ऑल? एक एग्जांपल लेते हैं हम जो हमने पढ़े, राइट? तो बात यह है कि यहाँ पर एक मैग्नेट था, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, मैंने उसको कट कर दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, और मेरे पास अभी दो मैग्नेट मिला, एक m/2 हो गया और दूसरा m/2 हो गया, राइट? और उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई ये साउथ है, साउथ रहा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ था, राइट? और मैंने इसको ऐसे रखा, ये s है, ये n है, इसको मैंने ऐसे रखा, राइट? और इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो है इसको मैंने सेमी सर्कल में बदल दिया। किस में बदल दिया मैंने इसको? सेमी सर्कल में, राइट? बच्चे क्या फॉर्मूला रट्टा लगाते हैं सर? सेमी सर्कल जब होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? 2m बाय पाई हो जाता है, राइट? बट अंडरस्टैंड हियर, ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड m/2 हो चुका है, तो मतलब ये m की जगह पे हम m ना लिख के 2 इंटू m/2 लिखेंगे, क्योंकि आधा हो चुका है जो ओरिजिनल था, बाय पाई, तो कितना हो जाएगा? m बाय पाई हो जाएगा। मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, राइट? अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स?
गेटिंग नॉट? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 था, m/2 रहा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/π हो गया। तो अगर वेक्टोरियली लिखे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में m/2, राइट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m/π। आर यू गेटिंग? तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट? आर यू गेटिंग ऑन? तो हम क्या कर देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो m/π प्लस m/2, राइट। अगर m कॉमन ले ले तो उसके बाद आप जैसे भी ऑप्शन देके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो लाइक दैट यू कैन डू। अगर क्वेश्चन को मैंने यहां से ट्विस्ट किया, मैंने ऐसा कट किया, इसका m/π बन गया, इसका m/2 बन गया, पर मैंने उसको ऐसे ज्वाइन नहीं किया, इसके बाद मैंने ये ट्विस्ट कर दिया कि भाई ये पर यहाँ पर मैंने ये साउथ ले लिया, ये नॉर्थ ले लिया जिसका m/2 है, और इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट किया, राइट। जस्ट सी हियर, इसको मैंने ऐसे ट्विस्ट किया, जस्ट आई ट्विस्टेड इट लाइक दिस, ठीक है, समझ पे आ रहा है। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर m/2 था, और इसको देखो मैंने कैसे कनेक्ट किया, वो डायग्राम में दिया रहेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ ले सकता हूँ, यहाँ पर साउथ ले सकता हूँ, अगर ऐसे लिया मैंने, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इसका तो m/π है, नो डाउट, इसका भी m/2 है, पर डायरेक्शन वाइज अगर देखेंगे इस पॉइंट लेके, तो ये साउथ टू नॉर्थ हो गया m/2, राइट, और ये किस तरफ हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, मतलब ऐसे हो जाएगा, तो मतलब इस तरफ हो जाएगा m/π। आर यू गेटिंग? तो एक एक तरफ m/2 है, एक तरफ m/π है, और दोनों परपेंडिकुलर, तो नेट इस तरफ हो जाएगा 90 डिग्री। तो m नेट जो होगा वो किस तरफ होगा, m/2 का होल स्क्वायर प्लस m/π का होल स्क्वायर का रूट ओवर, अंडरस्टूड? दिस इज गोइंग टू बी m नेट, और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने तरीके से, राइट।